Off lecture. Learn beyond class. Hello and welcome to Off Lecture, Learn Beyond Class. And today we are going to see all the NCERT questions and answers for the chapter 1 patterns in mathematics. We will see all the questions first and we have all the answers at the end. So every it out question from the chapter are in one place. I will not read them out. Instead, I will ask you how you would begin, like how you would begin solving the answer, because that is most important. Then we will wait for some time and then I will show you what will be its answer. That is how we will get to the answer. But one thing before we start, in this chapter, what makes an answer complete? What makes an answer complete? Is it just the answer or the number that is required? No, that is just a part of the answer. The reason behind the answer or the rule behind the answer is more important. So we will first identify the number or the question, what the question is asking. Then we will also identify what is the reason and the rule behind it. Okay, so let's start. So read the question 1 and try to think about how we will solve it. Take some time. Okay, so where does maths help us in everyday life? You can think of some two small examples. You can think of examples of calculating bills, summing the bills of different products that you have purchased, or if you see the time in the clock, there also we use the maths. Or if you are traveling through a train to get the arrival time, to get the destination time, all for these things you use the maths every day. Yes, so these are the two small examples, and how it helped humanity move forward. So for this, you have to think of two big examples also. So कौन सा example हो सकता है? Gravitation. Yes, gravitation is one of the best examples to depict how humanity has been helped by the maths, because gravity always existed in Earth. ओके, ग्रेविटी हमेशा से अर्थ पे एग्जिस्ट करती थी, बट उसको कंप्यूटेशनली कैलकुलेट करके एक कैलकुलेशन देना विद द हेल्प ऑफ मैथ्स, that is the use how math has helped humanity move forward. So laws of gravity बने, उसके formulations बने, उसके formulas बने, तो इसमें मैथ्स ने हेल्प किया. सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट सैटेलाइट्स, यस, सैटेलाइट्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. सो सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए एक पर्टिकुलर वेलोसिटी चाहिए होती है, और हाउ टू गेट द signals back from satellites, how to launch them in space, everything require maths at every point. So this is how it helped humanity move forward, because पहले के टाइम पे gravitation always existed, but हमें उसकी नॉलेज नहीं थी कि उसकी वैल्यू क्या होती है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं. सिमिलरली कुछ टाइम पहले तक सैटेलाइट्स हम पे थे ही नहीं. वी डोंट हैव सैटेलाइट्स, बट इन द लास्ट 100 years वी बिल्ड सैटेलाइट्स, वी बिल्ड जीपीएस, सो मेनी थिंग्स विद द हेल्प ऑफ मैथ्स. तो ये सब लिखना होगा आपको, और यूजिंग दीज टू एग्जाम्पल्स यू कैन राइट इट. Okay, now go for next question, that is second one. Think it through and then we will try to reach to the answer. Okay, so we have to write the rule for Veronica numbers, और इसको हमने पढ़ा था in the concept class, that it is also known as Fibonacci series. Yes, and powers of 2, powers of 3, and we have to give the next two terms of each. So how we will begin this question? We begin with the rule that is applied for all these three kind of number sequences. So Fibonacci series का क्या था? Yes, to get the next number we add previous 2. Yes, and for power of 2 we just double the number, the previous number, and we get the next number. And power of 3 we just triple the number to get the next term of the number sequence. So we can simply guess the next two terms of each. Answers is available at the back. You just have to need to know what was the concept that will be applied. You have to just recall it. आपको बस सोचना है कि हमने concept वाली class में क्या पढ़ा था. Okay, and you have to apply it here. Now question third, read it through and then we will see how we have to begin it. Yes, so
why are 1 3 6 10 15 called triangular numbers and 1 4 9 16 25 called square numbers? So they are asking why, they are asking the reason. So triangular numbers क्यों बोलते हैं और square numbers क्यों बोलते हैं? सॉरी, ट्रायंगुलर नंबर्स क्यों बोलते हैं और स्क्वायर नंबर्स क्यों बोलते हैं? हमने समझा था यूजिंग द डॉट डायग्राम, वी डिस्क्राइब्ड इट विद डॉट शेप. यस, सो दीज नंबर्स फॉर्म्स द ट्राइंगल, इसलिए उनका नाम ट्रायंगुलर नंबर्स है. और दीज नंबर्स फॉर्म अ स्क्वायर ग्रिड, इसलिए उनका नाम स्क्वायर नंबर्स है. यू हैव टू जस्ट ड्रॉ द ट्रायंगुलर नंबर्स डॉट्स डायग्राम एंड स्क्वायर नंबर्स डॉट डायग्राम एंड यू विल गेट योर आंसर. ठीक है. Next, let's move to the question 4, that is show that 36 can be arranged both as a triangle of dots and as a square of dots. So इसमें हमें क्या सोचना है? हमें दोनों फैक्ट्स को सेपरेटली शो करना है, हमें दोनों फैक्ट्स को सेपरेटली शो करना है. ये हमने कॉन्सेप्ट क्लास में भी समझा था कि 36 को ट्राइंगल ऑफ डॉट्स कैसे भी बता सकते हैं एंड स्क्वायर ऑफ डॉट्स कैसे दिखा सकते हैं. यस, सो थिंक इट थ्रू इन दैट डायरेक्शन कि हमें दोनों रूल्स, दोनों फैक्ट्स बताने हैं. ठीक है. यस, सो अगर हम ट्राइंगल ऑफ डॉट्स की बात करें तो 36 को कैसे शो करेंगे? मतलब अगर आप ट्राइंगुलर नंबर्स को अगर लिख भी देते हैं, सो 1 देन 3 देन 6 देन 10 प्लस 5 15 प्लस 6 21 प्लस 7 28 एंड प्लस 8 36. तो ये एट्थ टर्म है, एट्थ टर्म है. 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज द एट्थ टर्म. इसका मतलब हमें एक ट्राइंगल बनाना है 1 से शुरू करके 8 डॉट्स तक, और वो हमारा ट्राइंगल ऑफ डॉट्स बन जाएगा. सिमिलरली स्क्वायर ऑफ डॉट्स के लिए 36 इज नथिंग बट द स्क्वायर ऑफ 6. ये हमें पता है 6 स्क्वायर, और यू कैन राइट 6 टाइम्स 6. सो इसके लिए हमें क्या करना है? रोज ऑफ 6 डॉट्स एंड कॉलम्स ऑफ 6 डॉट्स. हमें 6 रोज दिखानी है और 6 कॉलम्स दिखाने हैं, और इसको कंप्लीट कर देंगे एंड वी कैन अरेंज देम बोथ एज द ट्राइंगल ऑफ डॉट्स एंड स्क्वायर ऑफ डॉट्स. ठीक है. नाउ रीड द क्वेश्चन नंबर 5. इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे? Remember the rule and the numbers will come quickly and free. The rings grows by 6. If you just see the difference, this is plus 6. The difference, this is plus 12. The difference plus 18. इसका मतलब नेक्स्ट वाले टर्म में क्या होगा? प्लस 24. सो 37 प्लस 24 विल बी 61. तो हमें आंसर भी मिल गया और हमें पैटर्न भी समझ में आ गया. ठीक है. Now attempt question number 6. Suggest a pictorial way to visualize the sequence of powers of 2. ओके, तो हमें कौन पावर्स ऑफ टू की सीरीज पता है? 1, 2, 4, 8, 16, 32. ये होती है हमारी सीरीज. तो इसको हमें पिक्टोरियल वे में शो करना है. तो कैसे करेंगे? बहुत सारे वेज हैं, किसी भी तरह दिखा सकते हो. ग्रिड की तरह डॉट्स ऑफ ग्रिड बना सकते हो, स्क्वायर्स ऑफ ग्रिड बना सकते हो, कैसे भी दिखा सकते हो. ठीक है. तो लेट्स एग्जांपल हम एक स्क्वायर की तरह दिखाएं. तो चलो, एक स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 1 सेकेंड, यहाँ पे हमें 8 स्क्वायर दिखा दिए, फिर 16 स्क्वायर और ऐसे 32 स्क्वायर्स. सो वी कैन डिपिक्ट. ओके, मतलब हमारा मेन वे क्या होगा कि ईच पिक्चर इज द 2 कॉपीज ऑफ द वन बिफोर. लेट्स सपोज यहाँ आप सिंगल ह्यूमन दिखा रहे हो, तो नेक्स्ट वाला टर्म 2 ह्यूमंस आएंगे. दीज आर 2 ह्यूमंस. फिर आप अगर यहाँ 2 दिखा रहे हो तो आपको इसको डबल करना रहेगा, दैट इज 4 ह्यूमंस. 4 ह्यूमंस, ऐसे 4 ह्यूमंस. ठीक है. ऐसे 8 ह्यूमंस, 8 ह्यूमंस, 16 ह्यूमंस एंड 32 ह्यूमंस. ऐसे ही फ्लावर्स भी दिखा सकते हो, ऑरेंजेस भी दिखा सकते हो, फ्लावर्स, ऑरेंजेस, वेजिटेबल्स, कुछ भी शो कर सकते हो. वी जस्ट हैव टू सजेस्ट अ पिक्टोरियल वे. सो देयर आर वेरियस ऑप्शंस. ठीक है.
नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7. ट्राई इट एंड देन वी विल बिगिन इट विद द rule. What is the sum of the first 10 odd numbers and the first 100? Explain the reason. So कैसे हमें सोचना है इसको? हमने एक रूल पढ़ा था, पोजीशंस टू टर्म्स रूल. पोजीशंस टू टर्म रूल. अपोजिशन टू टर्म रूल क्या का यूज क्या था? टू गेट द नंबर्स फास्टर. सो ये अप्लाई करना है. सो ट्राई इट एट योर एंड एंड देन इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे. आप पॉज भी कर सकते हो बीच में वीडियो को, उसके बाद आप सॉल्यूशन देख सकते हो. ओके, सो हमने nth ऑड नंबर, ऑड नंबर्स की सीरीज है, तो nth ऑड नंबर को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला पढ़ा था 2n + 1. अब इससे हम इसने हमसे क्या पूछा है? द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स एंड देन सम ऑफ फर्स्ट 100. ओके, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? बताइए. यस, तो ये जो पोजीशंस टू टर्म रूल्स थी, ये हमें नंबर दे देगी, बट सम कैसे देगी? सम कैसे निकालेंगे हम? रिकॉल द क्लास. लेट्स सपोज अगर हमसे नंबर पूछा जाता तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते कि 10th डिजिट कौन सी होगी? तो 10 डिजिट होगी 2 × 10, सॉरी दिस विल बी -1. So 2 × 10 - 1 is 19. So 19 is my 10th टर्म, और 100th टर्म के लिए भी हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 199. बट इसने हमें सम पूछा है, तो सम के लिए क्या करते हैं हम? हमने पढ़ा था कि अगर हम ऑड नंबर्स को सम करेंगे तो हमें स्क्वायर की सीरीज मिलेगी. स्क्वायर की सीरीज मिलेगी. दिस इज द हिंट फॉर यू. दिस इज द हिंट कि अगर हम 1 + 3 + 5 करते हैं तो we got 9 which is the square of 3 which is 3 × 3. So similarly अगर हमें first 10 numbers का ऐड करेंगे तो 1 + 3 + 5 + 7 up to 19. So हमें 10 का स्क्वायर मिलेगा. Yes, that is 10 × 10 which is 100. Okay, similarly इसके लिए भी सॉल्व कर लेना. Now let's move to the 8th question, that is why does adding counting numbers up and then down gives a square number? Find 1 + 2 + 3 up to 100. फिर उसके बाद डाउन जाना शुरू किया. यहाँ तक अप आ रहे थे, फिर इसके बाद हमने डाउन जाना शुरू किया. पहले ऐसे चढ़े फिर उतर गए. ठीक है. So why does adding counting numbers up and down give a square number? Think ऑफ द डायमंड शेप, जो हमने क्लास में कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा था. डायमंड इज नथिंग बट अ टिल्टेड स्क्वायर, और उसको हमें एक्सप्लेन करना है. ठीक है, तो डायमंड कैसे बनता है? 1 2 3 2 1, ये एक डायमंड बन गया. ये एक टिल्टेड स्क्वायर भी तो है, टिल्टेड स्क्वायर भी है, इसलिए गोइंग नंबर अप एंड गोइंग नंबर डाउन गिव्स यू अ स्क्वायर नंबर. Okay, and this is the square of 100. Okay, now question 9, which sequence do you get when you add all one's sequence up and when you add it up and down? So question 9 में अगर हम वंस को ऐड करते जाएंगे तो हमारी लेट्स से वंस की सीरीज है ये. 1 + 1, पहले 1 लिख लिया, देन 1 + 1 2, 1 + 1 + 1 3, 1 + 1 1 + 1 4 एंड सो ऑन. तो हमें काउंटिंग नंबर्स मिल गए. ठीक है, और अप एंड डाउन गिव्स ऑड नंबर्स. ओके, अगर हम इस सीरीज को अप एंड डाउन ऐड करेंगे तो हमें ऑड नंबर्स मिलेंगे, दैट इज 1 3 5 7 9. ठीक है, ये हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लास में भी पढ़ा है, एग्जाम्पल भी देखा है. जस्ट रेफर इट एंड राइट द आंसर. ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10.
Question number 10 says, what do you get when you add pairs of consecutive triangular numbers such as 1 plus 3, 3 plus 6, 6 plus 10? So two consecutive triangular numbers हमें क्या देते हैं? स्टेयर केसेस वाला एग्जाम्पल याद करो. 1 plus 3 gives 4, 3 plus 6 gives 9, 6 plus 10 gives 16. मतलब 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर. तो ये हमें स्क्वायर नंबर्स की सीरीज देते हैं. ये हमें स्क्वायर नंबर्स की सीरीज देते हैं. ठीक है. So you have to write that when you add pairs of consecutive triangular numbers, we will get square number series, that is 1 square, 2 square, 3 square and 4 square. Okay. Add up the numbers. Next question है, add up the numbers of 2 starting with 1, then add 1 to each total. What do you notice? Add up the powers of 2 starting with 1. So 1 square, 2 square, 3 square, 4 स्क्वायर. ये हमारी सीरीज हमें दे रखी है. देन ऐड 1 टू ईच टोटल, मतलब हमें सब में 1 ऐड करना है. तो हम क्या नोटिस करेंगे? 1 प्लस 1 2, 4 प्लस 1 5, 9 प्लस 1 10, 16 प्लस 1 17. सो ये हमें क्या बता रहा है? The power of 2 totals are each one short of next power. ठीक है. The powers of 2 totals are each one short of next power. Okay. This is 1, this is 4, this is 9, this is 16, then 25. तो अगर हम इसे स्टार्ट करते हैं तो 1, 1 plus 4 is 5, 1 plus 4 plus 9 is 14, 1 plus 4 plus 9 plus 16 is 30 and so on. ठीक है. Now let's do question 12. Multiply each triangular number by 6 and add 1. So which sequence appears? What if you add hexagonal numbers? Okay. So you have to begin with ट्राइंगुलर नंबर को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें और ऐड करें, सो वी गेट द हेक्सागोनल सीरीज. ठीक है. और अगर उन्हें ऐड करें सो वी गेट द क्यूब्स सीरीज. वी कैन ट्राई ऑल्सो. अगर हमारे ट्राइंगुलर नंबर्स 1 3 6 10 15 21 हैं लाइक दिस, सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 6 एंड ऐड 1 करें, सो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 1 इज 7, 3 multiplied by 6 is 18, plus 1 is 19, 6 multiplied by 6 is 36, plus 1 is 37, and this is my hexagonal series, plus 6 plus 12 like this. और अगर इन numbers को अगर हम add करते हैं तो we get cubes. 1 cube, 2 cube, 1 plus 7 is 8, 2 cube, 1 plus 7 plus 19 is 27, which is 3 cube and so on. ठीक है. Now let's move to next question. Count the sides and the corners of the regular polygon in table 3. Which sequence appears and why do the counts match? तो हमने ये पढ़ा था कि sides are equal to the corners, और इसका हमने रूल भी पढ़ा था, रीजनिंग भी पढ़ी थी कि वाई साइड्स आर इक्वल टू द कॉर्नर्स. यू हैव टू जस्ट राइट द रीजनिंग ऑफ इट, राइट द रीजन ऑफ इट. ओके.
सो ये हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी लाइंस आर इन द कंप्लीट ईच कंप्लीट ग्राफ, स्मॉल स्क्वायर्स इन ईच स्टैक्ड स्क्वायर एंड सेगमेंट्स इन ईच कोच स्नोफ्लेक. सो ये भी हमने क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू समझा था. 3 काउंट्स एट वंस, ग्राफ्स गिव्स ट्राइंगुलर, ये ट्राइंगुलर सीरीज देते हैं. स्टैक्स गिव्स स्क्वायर्स एंड द स्नोफ्लेक मल्टीप्लाइज बाय 4. दिस मल्टीप्लाइज बाय 4. ठीक है. नाउ क्वेश्चन 15, write the next 3 numbers of every sequence in table 1 and state each rule in your own words. तो ये काफी सिंपल है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है. सिंपल रूल हमें आइडेंटिफाई करना है और उसका आंसर बताना है. ठीक है. सो आंसर इज एट द बैक. आपको जब स्लाइड मिलेगी उसमें आंसर्स होंगे. जस्ट यू हैव टू थिंक ऑफ द रूल्स. ओके, कि कौन सा रूल है वो. ओके, एंड you have to state that. Then comes, can you draw the next shape in every sequence of table 3? Why or why not? ये भी हो जाएगा. हमें शेप देखनी है. वी हैव टू ड्रॉ द नेक्स्ट शेप इन एवरी सीक्वेंस ऑफ टेबल 3. सो वी कैन सी द टेबल 3 और उसके हिसाब से हम ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, और जहां ड्रॉ हो पाएंगी वो हो जाएंगी, नहीं तो नहीं हो पाएंगी. Okay, you can see the answers at the back also. Like if you go, every question has been given the answer. So आप इसको रेफर कर सकते हो and you can understand the problem in it. Okay, so क्वेश्चन 16 का आंसर भी दिया हुआ है. 4 of them can be drawn easily. Add a side to a polygon, add a dot to a graph, add a row to each stack. The snowflake cannot be drawn exactly because each step replaces every segment with the 4 smaller ones. So snowflake draw करना थोड़ा difficult है by hand, but बाकी 3 we can draw. ठीक है. So सारे आंसर्स गिवन है यहाँ पे. You have to just think it through what is the rule applied और उसके बाद solutions आ जाएंगे. Okay. Similarly, we have to find the pattern of your own among the sequences of table 1 and explain why it happens here. Okay. So आप देखोगे table 1 में the gaps between squares are 3, 5, 7, 9, which is nothing but the odd numbers. Okay. Now question 18, visualize the square number 64 and the cube number 1000 using dots. Okay, so हमें क्या करना है, 64 को 8 by 8 का ग्रिड बनाना रहेगा using the dot, 8 dots in rows and 8 dots in columns, and 1000 is 10 by 10 cube. 10 by 10 का क्यूब बनाना रहेगा, मतलब 10 cubes in rows and 10 cubes in columns. Okay. And last question is, copy the pictorial representations of table 2 and draw the next picture in each sequence. So we know all the rules available. We know how to identify the rules and उसके हिसाब से हम picture draw कर देंगे. So very simple NCERT questions and all the answers are at the end. You can easily refer them and you can write the answers on your worksheet. Okay. Thank you.